The financial year in India start on 1st of April every year and finishes on 31st of March. So earlier the practice, earlier means, I mean even from the British period till 4 or 5 years back, the practice was to present the union budget in Parliament on 28th of February. That was a fixed date almost. Sometime it happened that it was on 27th, but otherwise it was always on 28th, right? And it was going on and on till the time this practice was changed. And why this practice was changed? Because if the budget was being presented on 28th of Feb, then the complete process of discussion in both the houses of Parliament and passage of the bill was taking at least 1.5 months or 2 months. This means if the budget was being presented on 28th of Feb, then whole March or April had gone into the procedural things and finally passing of the budget. So, and before that the new financial year used to start. So always there was a problem, and because until the budget is passed by Parliament, no expenditure can be done from the government action. जब तक बजट पास नहीं होता पार्लियामेंट से, तब तक कोई भी खर्चा सरकारी खजाने से नहीं किया जा सकता। तो हर साल ये प्रॉब्लम आती थी कि 1 अप्रैल के बाद बजट पास होता था, तो 1 अप्रैल के बाद देश का खर्चा कैसे चलेगा, दिस वाज ए प्रॉब्लम। तो उसके लिए डिमांड इन ग्रांट पास की जाती थी, मतलब जब तक बजट पास नहीं होता तब तक के खर्चे के लिए अलग से प्रोविजन रख के पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। So this government decided to change that practice and to present the budget on 1st of February so that it can be passed by Parliament before 31st of March and before the new financial year on 1st of April starts. Before that, all approvals are done. So this is indeed a good practice that this government has started, right? Besides this, till 4-5 years back, there used to be 2 budgets presented in Parliament. One was the union budget, which was being presented, as I told you, on 28th of Feb. There was another budget which was being presented in Parliament. It was railway budget. It was normally being presented 2 or 3 days before the union budget. So normally the rail budget was being presented on 25th, and the union budget, the final budget, main budget, was being presented on 28th. Now the rail budget has been incorporated, has been mixed with the union budget. So there is no separate rail budget. So that practice got disabandoned after 60-65 years. Now अब रेल बजट अलग से नहीं है, रेलवे के भी जो प्रोविजंस है वो यूनियन बजट में ही है, ठीक है? And 1 or 2 important things I will tell you, then you will be shown the videos. Whenever the budget is presented like this on 1st of Feb, the budget that has been presented, this is having financial provisions for financial year 2020-2021. जो अभी बजट पेश होगा ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए है, ठीक है? तो जो अभी बजट पेश होगा उसमें पुराना अकाउंट किस ईयर का होगा, जैसे अभी चल रहा है 2020, राइट? तो ये फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो पिक्चर अभी नहीं है। अभी इस बजट में जो पिक्चर है वो है फर्स्ट 9 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। पूरे एनुअल पिक्चर हमारे पास नहीं है। एनुअल पिक्चर किसकी हमारे पास है? 2018 to 2019, उसकी फाइनल सारी रिसीट, सारे एक्सपेंडिचर कंप्लीट कंबाइंड है। तो जब बजट पेश होता है तो जैसे इस वाले का 2018-19 का कंप्लीट पिक्चर, 19-20 की पहले 9 महीने की पिक्चर, विच इज टेंटेटिव सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग, जो अगले बजट में, और नेक्स्ट बजट जो फाइनेंशियल ईयर है
2020-21 उसके फाइनेंशियल प्रोविजंस एंड सैंक्शंस। सो दिस वे कोई भी जो यूनियन बजट है वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स को डील करता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है। और इससे पहले, बजट से पहले एक और डॉक्यूमेंट पेश होता है लोकसभा में, विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। जैसे अब ये बजट 1 तारीख को 1 फेब को पेश हुआ, तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ लोकसभा में। कितने लोगों ने देखा उसे? नहीं, सुनने वाली चीज थोड़ी है, सुनने को सरकार की कथा होती है तो पढ़ लेगी। Economic survey is considered a very vital document because it provides a complete picture of the economy as the government looks at it. सरकार पूरे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जो सरकार का टेक है, जो पॉलिसी इश्यूज है, उसमें सरकार ने क्या पोजीशन है देश की आर्थिक रूप से, आगे सरकार क्या करने जा रही है, ये एक तरह से पॉलिसी डॉक्यूमेंट है एंड विच इज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन ए वे इफ यू लुक एट द इकोनॉमिक सर्वे यू कैन इजीली मेक आउट व्हाट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट। So economic survey, and it's internationally considered an important document to look at and to understand the Indian economy. तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, लेकिन यूएस में भी जो एक्सपर्ट होंगे वो बैठ के देखेंगे कि क्या रोड मैप है इकोनॉमी को लेके भारत सरकार। सो दैट इज हाउ इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नाउ मोहित सर हैज डन लॉट ऑफ जॉब फॉर यू एंड गुड जॉब wherein he has picked up certain important videos which will be shown to you, which will help you in understanding the union budget. If some videos you find too long, we can cut it short, we can stop wherever you get bored. The point is, till the point you understand and enjoy it, fine. Till the time you find that there is nothing interesting, we can skip all that. And then he has also presented a presentation wherein he will be touching upon important points with regard to the budget and the provisions with regard to taxation and other issues. And thereafter, whatever questions you will be having, we will try to answer those questions. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 के लिए यूनियन बजट पेश किया और 2 घंटे 40 मिनट का लंबा भाषण देकर रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन एक और रिकॉर्ड इस बजट में बना है, वो ये है कि बजट के बाद शेयर बाजार में 10 साल बाद इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट टूटा। लेकिन ये क्यों हुआ, हम ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। पहली बात बजट की। सरकार ने साल 2020 के लिए बजट की थीम रखी है ईज ऑफ लिविंग, मतलब लोगों की जिंदगी आसान बनाना। सरकार ने बजट 2020 को 3 भागों में बांटा है। पहला एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरा केयरिंग सोसाइटी। पूरे बजट स्पीच की सबसे बड़ी खबर है टैक्स स्लैब में बदलाव। इस बार सरकार ने एक और इनकम टैक्स स्लैब बना दिया है, जिसमें 5 लाख से 15 लाख तक इनकम पर अच्छी छूट दी गई। लेकिन इसके साथ एक शर्त यह है कि इस स्लैब का ऑप्शन चुनने पर आपको कई तरह के एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी टैक्स भर सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले बात की केयरिंग सोसाइटी की। सरकार ने बजट में किसानों के लिए 16 एक्शन पॉइंट बताए जिन पर ये सरकार आगे काम करेगी। पानी की किल्लत दूर करने, सोलर पंप को बढ़ावा देने, कोल्ड स्टोरेज पर फोकस देने जैसे कई ऐलान किए गए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 69,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। इससे इंद्रधनुष योजना का विस्तार करके 12 नई बीमारियां शामिल की जाएंगी। सरकार एक नया अभियान चलाएगी, टीबी हारेगा देश जीतेगा, जिसके तहत 2025 तक टीबी खत्म करने की योजना है। स्वस्थ भारत मिशन पर सरकार ने इस बजट पर भी जोर दिया है। स्वस्थ भारत मिशन को 12,300 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है। हर घर पेयजल योजना को भी सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। अब बात इस बजट में एजुकेशन सेक्टर की। सरकार ने ऐलान किया है कि नई शिक्षा नीति जल्द आएगी। सरकार ने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इंजीनियर्स के लिए खास ऐलान। According to Article 112 of the Indian Constitution, it requires the government to present to Parliament a statement of estimated receipts and expenditure in respect of every financial year from April 1 to March 31.
and the statement is called annual financial statement. Common parlance में we call it as budget. Okay, and as sir has mentioned, जैसे जब तक बजट पहले पेश होता था 28 फरवरी को, तो उस टाइम पे क्या होता था, बजट को लोकसभा में भी पास करवाना है और राज्यसभा में भी उसमें डिस्कशन होना है, क्योंकि पावर जो है लोकसभा के पास में है, सिंस इट्स अ मनी बिल, ठीक है, लेकिन उसको पास तो कराना पड़ेगा, उस पर बहस होगी, एंड बजट सेशन इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अभी 11 फरवरी तक जो बजट सेशन का पहला पार्ट है वो चलेगा, फिर 1 महीने का गैप है, 1 महीने का हॉलिडे है, एंड देन फिर से 1 महीने का डिस्कशन होगा ऑन बजटरी एलोकेशंस एंड ग्रांट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा जो स्कीम है, कैन यू प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा? महात्मा गांधी रूरल एग्जैक्टली, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अपनी कंट्री में अभी 4 दिक्कत है जीडीपी को लेके, 4 मेजर चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। पहली चीज है कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, हम आप जैसे लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है, तो वो काफी कम है। दूसरी चीज इसके अलावा है प्राइवेट कंजम्पशन के अलावा कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो भी काफी ज्यादा कम है, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अलावा इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है अपनी कंट्री के अंदर में, दैट इंक्लूड्स दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी काफी कम है। एफडीआई का जो फ्लो है वो काफी कम है। यू रिमेंबर अभी कुछ दिन पहले जब जेफ बेजोस केम टू दिल्ली, तो पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हमें जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली यू पीपल एंड वी ऑल नीड जॉब्स, और वो अगर यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं तो जॉब्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है। तो वो तीसरी दिक्कत है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अकाउंट्स इन जीडीपी इज द एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स इंडिया का ट्रेडिशनली हमेशा से कम रहा है। तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं जिस पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक चीज इस बार जो करी है कि बजट के अंदर जो हमारा टैक्स स्लैब है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, ताकि हम लोग जो है जब हमारे पास में पैसा होगा, डिस्पोजेबल इनकम आएगी, जो टैक्स काटने के पास बाद हमारे पास पैसा बचता है हाथ में, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो जब डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास में आएगी तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे या उसको हम स्पेंड करेंगे इकोनॉमी के अंदर। जब हम स्पेंड करेंगे तो जिसके ऊपर भी हम स्पेंड करेंगे उसके लिए वो एक तरह से वेल्थ क्रिएट करेगी या उसको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड काम मिलेगा। सो वो चीज गवर्नमेंट ने करी है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। ये देखो, सबसे पहले दिस इज अ फिगर व्हिच इज फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कि आपका जो रूपी है वो कहां से आता है, कहां को जाता है, किस तरह से स्पेंड करती है गवर्नमेंट। सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द अपर इमेज, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, गवर्नमेंट बोरो करती है और बोरो करने के बाद उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट तो जनरली हम लोग ज्यादा पे नहीं कर पाते, बट वी गो ऑन टू पे द इंटरेस्ट, ठीक है। देन कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगाया जाता है, अर्लियर इट वाज 30%, गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 25% तक ले आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, अभी भी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओयो रूम्स है, वो भी अपने कुछ स्टाफर्स हैं उनको वो वहां पे उनको निकाल रहे हैं वहां से, ठीक है। ओयो रूम्स व्हिच इज अ वेरी गुड बिजनेस। देन इसके अलावा पेटीएम है। सो इकोनॉमी की हालत काफी खराब है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस? अनुराग ठाकुर। अभी फेमस स्टेटमेंट दिया था दिल्ली में, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। सो कॉर्पोरेट टैक्स में कितना आता है रेवेन्यू। देन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में हम सब लोग मेजरली जो है, कुछ हो सकते हैं जो बिजनेस फैमिली से हो और कुछ जो सैलरीड क्लास है वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। देन इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड अदर रिसीट्स। तो ये पूरा उसका फिगर है कि कैसे पैसा सरकार के पास रेवेन्यू के फॉर्म में आता है और कैसे सरकार उसको खर्च करती है। नाउ मूविंग ऑन, ये देखिए ये नया स्लैब है जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। प्रीवियस वन वाज कि अप टू ₹5 लाख। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर जब इलेक्शंस थे तो गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था, इंटरिम बजट, क्योंकि जब बजट का ईयर होता है तो सरकार फुल फ्लेजेड बजट प्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि फिर उससे ये हो सकता है इट कैन वू द वोटर्स। सो दैट्स व्हाई उन्होंने उस टाइम पे अनाउंस किया था कि भाई जो टैक्सेशन रेट है 5 लाख तक वो बिल्कुल कम कर दिया था, उसको नील कर दिया था। अब नई में ये हुआ है कि जो 5 से 7.5 लाख है और 7.5 से 10 लाख है वो 20% है, उसको कम करके 10% एंड 15% कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कैच है, कैच ये है कि हम लोग जो है एज पार्ट ऑफ आवर सैलरी, दिस यू कैन आस्क योर पेरेंट्स एज वेल, हमारी जो सैलरी है उसमें से हम 1.5 लाख सेविंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ LIC, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, आप लोग के पेरेंट्स ने, हो सकता है किसी ने लोन लिया हो एजुकेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर सब्सिडी या उसको मतलब क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन में। तो अगर हम नई टैक्स रिजीम में जाते हैं, जो नया प्रपोजल है,
तो उसमें हमें सारे डिडक्शन जो है अपने वो फॉरगो करने पड़ेंगे। और एक बार अगर हमने वो डिसीजन ले लिया तो हम वी कैन नॉट गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये क्या किया कि पहले में आपको बहुत सारे एग्जेम्पशन थे, आपने किसी एनजीओ में कुछ पैसा डोनेट किया तो उसका भी एक एटीजी सर्टिफिकेट आपको मिल गया या एटीसी सर्टिफिकेट मिल गया, तो आपने क्लेम कर लिया कि भाई ठीक है मैंने यहाँ पैसा दिया था, मुझे इसके टैक्स का रियायत मिली, ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल किया आपने तो उसको क्लेम कर लिया। अब सरकार ने ये किया है कि ये सब कुछ खत्म होगा अगर आप नए में आते हैं, आपका परसेंटेज टैक्स कम हो जाएगा। सो नाउ इट इज वॉलंटरी ऑन अस, ठीक है, और ऑन योर पेरेंट्स टू डिसाइड कि वो कौन से टैक्स में रहना चाहते हैं, कौन से टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं। ओके, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल, ठीक है, ये दो आपके जो फर्म्स हैं इनको मर्ज कर दिया गया है और इसमें मोर देन 75,000 एम्प्लॉइज हैव टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट बिकॉज दे वर रनिंग इनटू लॉसेस, ठीक है। तो वो चीज सरकार ने करी है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, उसको भी डिसइन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। और सबसे मेजर है एलआईसी का, कि एलआईसी में जो आपका सरकार का होल्डिंग है उसको वो कम करेंगे, उसको वो थ्रू शेयर मार्केट डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सरकार के पास रेवेन्यू आएगा तो सरकार इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। प्लस इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो अभी अपने पास में इकोनॉमी में है, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, दैट हैज एक्चुअली ब्रीच्ड द टारगेट जो आरबीआई के पास में था कि उसको 6% तक रखना है, 2% से 6%, वो दिसंबर के अंदर 7.5% हो गया है। तो वो एक चैलेंज है गवर्नमेंट के पास में, बिकॉज यू ऑल नो प्याज का रेट बढ़ गया था और पेट्रोल का रेट बढ़ा था बिकॉज जो हमने डिस्कस किया था यूएस ईरान टेंशन, और सऊदी अरामको के अंदर जो अटैक हुआ था, जो उस पे ड्रोन अटैक हुआ था। सऊदी अरामको वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की, जो ट्रेड कर रही है शेयर मार्केट में, ठीक है। सो दिस इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो सरकार ने 2003 के अंदर एक एक्ट पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, कि सरकार जो अपना खर्चा करती है, अगर मैं नॉर्मल तौर पे आपको समझाऊं, सरकार जो अपना खर्चा करती है और जो रिसीट आता है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट है, उसके अंदर बोरोइंग्स फिर सरकार को करनी पड़ती है। तो उसके लिए सरकार ने टारगेट सेट किया था कि वो 3.5% रहेगा ऑफ द जीडीपी। इस बार सरकार ने उसको बढ़ाया है, 3.8% तक लेके गए हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा है नहीं, ठीक है। ऑल्दो सरकार ने आरबीआई से भी जो इंसेंटिव मिलता है वो भी ले लिया है, बट स्टिल इट इज अनेबल टू मींस मीट इट्स एक्सपेंडिचर। तो वो जो है इसमें इस बार इन्होंने गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो रिवाइज किया है, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें सरकार ने अपना जो एक्सपेंडिचर है या फिस्कल डेफिसिट है उसको बढ़ाया है। देखो, वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर अ वेलफेयर इकोनॉमी, तो थोड़ा बहुत तो फिस्कल डेफिसिट होगा, लेकिन इट शुड बी इन कंट्रोल, अदरवाइज वो प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बताऊं, जब 2014 में ये सरकार आई थी तो इफ यू रिमेंबर पिछले 6 साल के अंदर जो पेट्रोल का प्राइस है वो 70 से नीचे नहीं आया, इट हैज गॉन अप एंड अप। एंड जो लेट फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली, उनसे पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि सर इतना टाइम हो गया तो जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है वो भी घट गया है, तो आप प्राइस क्यों नहीं घटा रहे हैं? तो कह रहे हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट छोड़ा था उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और सरकार ने लगातार पिछले कई साल में एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है, टैक्सेशन रेट को बढ़ाया है, तो दैट्स व्हाई पेट्रोल का रेट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और अब जो मार्केट की सिचुएशन है, अब क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू 2014, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो एक चीज है कि भाई क्योंकि हम सब लोग जो अपना ये पेट्रोल का रिक्वायरमेंट है, मींस ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें काफी इन्वेस्ट करते हैं, और हमारा जो 80% से ज्यादा का डिमांड है पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट ये रिवाइज किया गया है, सरकार खर्चा ज्यादा करेगी। एंड देन मैं बस ये 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूं। बिगेस्ट गेनर्स कौन से? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी कुछ इन्वेस्ट करेगी, बहुत सारे हाईवेज वगैरह बनाने की बात है। देन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी काम करने का काफी इन्वेस्टमेंट रखा गया है। रूरल इंडिया, हालांकि जो एमजी नरेगा है उसका जो फंडिंग है वो थोड़ा सा कम किया गया है, ठीक है। एमजी नरेगा के अंदर में 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जब हाथ में पैसा होगा तो उसको खर्च भी करेंगे, ठीक है। तो जॉबलेसनेस है जो कुछ लेवल तक वो कम होगी। देन उसके बाद में वाटर को लेके सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी, उस मिनिस्ट्री का नाम कौन बताएगा? मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिवर। नहीं, वो पहले से ही है, नीति आयोग मिनिस्ट्री नहीं है, नीति आयोग तो पहले से ही है, प्लानिंग कमीशन की जगह एक और बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत इज द मिनिस्टर।
जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि सरकार का टारगेट है बाय 2024 सबके घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि 2020 के अंदर जो दिल्ली जैसी सिटी है इसका ग्राउंड वाटर लेवल 0 हो जाएगा। ग्राउंड मतलब वो क्या है, एकदम 0 डे आ जाएगा। तो सरकार का ये टारगेट है, हमें सोचना है कि क्या कैसे पूरा हो सकता है। तो वाटर के अंदर भी इन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फार्म सेक्टर जीडीपी के अंदर 3 हमारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड क्वार्टरनरी सेक्टर, लेकिन मेजरली 3 है। सो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अभी बहुत दिक्कत है, ठीक है, हर लेवल पे। एक वीडियो में इन्होंने बात करी थी कोल्ड स्टोरेज कि भाई इस तरह की कोई शॉर्टेज आती है तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उधर इन्वेस्ट करेंगे। टेलीकॉम कंपनीज में कहा है कि ब्रॉडबैंड देंगे, भारत नेट प्रोजेक्ट है सरकार का, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन देंगे, ठीक है। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर की जो अभी हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है, जो लाइसेंसिंग फीस होनी चाहिए वो एयरटेल को, वोडाफोन को, आइडिया को, रिलायंस जियो को पे करना है टू दी गवर्नमेंट, जो करीब 50,000 करोड़ है। सो वो आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है, ठीक है। लेकिन सरकार कह रही है कि जो इंटरनेट का प्रोजेक्ट है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना है। देन ऑनलाइन एजुकेशन पे काफी काम होगा, ऑनलाइन एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। आईटी फर्म्स, पाइपलाइन एंड सिटी गैस सप्लाई पे भी काम होगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द लूजर्स, इंश्योरेंस, क्योंकि जो LIC है उसका कुछ परसेंट ये लोग बेचने वाले, इसको पॉजिटिव सेंस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का कैश काउ है, तो इससे उन्हें लग रहा है कि थोड़ा एफिशिएंसी आएगी, थोड़ा पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उसको इफेक्टिवली खर्च कर सकती है। देन स्टेट रन बैंक्स, मैं आपको बताऊं हमारे जितने भी स्टेट रन बैंक्स हैं, आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे बैंक्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, सरकारी बैंक्स में, ठीक है। और अभी रिसेंटली 31 के बाद, हाँ 31 जनवरी एंड 1 फरवरी को 2 दिन का स्ट्राइक था बैंकों का, सरकारी बैंकों का, ठीक है। तो दे वर डिमांडिंग इंक्रीज इन सैलरी। पिछले 5 साल से सरकार हैज बीन इन्वेस्टिंग इन दीस बैंक्स कि पैसा डालेंगे तो जो ये NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है ना, आपने मेहुल चौकसी, ठीक है, उसके बाद नीरव मोदी और किंगफिशर के कौन है, विजय माल्या, पैसे लेके भाग गए हैं, बैंक में जाओ तो बोलते हैं उनको तो पकड़ा नहीं, हमसे क्यों मांग रहे हो सारे, पब्लिक ऐसी बात करती है। तो इस बार उसमें फंडिंग नहीं मिला है। देन फर्टिलाइजर कंपनीज जो है, फर्टिलाइजर वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मिंग सेक्टर, तो वो फर्टिलाइजर जो कंपनीज हैं उसमें भी कुछ कटौती की गई है। लॉजिस्टिक्सल जो प्लेयर्स हैं उसमें कुछ कटौती हुई है। एंड रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन वो पिछले 5 साल से डाउन ही है, उसमें भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं ला पाई है। सो दिस वाज इन ऑल रिगार्डिंग द बजट। तो मेरा क्वेश्चन है कि 2013 में एग्रीकल्चर इंपोर्ट से वो थे 29,000 करोड़, 2016 में थे 1.4 लाख करोड़, उसका हमारा जारी प्रेडिक्शन है कि 110 टाइम्स बढ़ा दिए गए। एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होए, ठीक है, एग्रीकल्चर में स्कीम्स ला रहे हैं, पर हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जब एग्रीकल्चर स्कीम्स ला रहे हैं ऊपर से 6.5% टारगेट है जो करा जो 16 पॉइंट्स का एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर की जो देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि इट्स एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। अनऑर्गेनाइज का मतलब हुआ कि किसान जो भी अपनी फसल उगाते हैं, जो उनकी समझ में आता है करते हैं। Though there are universities and colleges, the agriculture universities, etc., though the government of India's Ministry of Agriculture and the agriculture ministries in the state government, they try to provide some guidance to the farmers, but that's not up to that extent wherein the farmers can be educated as to which crop is to be taken up, what all is needed for that crop and all. So that is one problem. तो देयर इज ए गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। बाजार में आलू की जरूरत है, पता लगा किसी साल किसानों ने आलू ही कम उगाया, तो इट विल रिजल्ट इन ए राइज इन द प्राइस ऑफ द पोटैटोज। सेम इज विद एनी क्रॉप, जितनी डिमांड है मार्केट में, देयर इज नो एजेंसी विच कैन मेक एन असेसमेंट दैट दिस मच डिमांड विल बी क्रिएटेड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर क्रॉप, एंड अकॉर्डिंगली द फार्मर्स आर आस्क्ड टू टेक अप दैट क्रॉप। This is one. Then secondly, gradually there is a tendency among farmers that they go for cash crops. तो पता लगा कि गेहूं की फसल ही नहीं हुई और सारे लोग गन्ना उगा रहे हैं या सारे लोग कॉटन में चले गए। तो ये जो मिसमैच है between the demand and supply, between the agriculture produce and the demand of a particular produce in the market. So this is one. Another major problem is the since agriculture in India is completely dependent on weather.
हम अपने जितने भी इरिगेशन से लेके दो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन डन, but then still the kind of irrigation that we have in our country, that is not enough for whatever crop that we have in our country. And also there are sometimes some natural disasters, flood आ गया, flood आजकल रोकने के लिए the kind of efforts which are required of the part of the government नहीं है, कभी सूखा पड़ गया तो क्या होता है कि कोई भी क्रॉप वो बर्बाद हो जाती है। जैसे अभी राजस्थान की एक रिपोर्ट आ रही थी एबीपी न्यूज में कि वहां टिड्डियों ने हमला कर दिया, 10 जिलों में सारी क्रॉप बर्बाद हो गई। ठीक है, तो इस तरह की अनफोर्सीन चीजें होती रहती हैं। तो अब जितनी भी क्रॉप बर्बाद हुई, सपोज अगर सरसों की फसल गई तो सरसों का तेल मार्केट में महंगा हो जाएगा, तो वो जितने किसान थे वो मारे गए जिनकी फसल गई। शहर में जो तेल है एडिबल ऑयल है वो महंगा हो गया, तो वी ऑल विल सफर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से अचानक किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कमी हो गई। ठीक है, सपोज गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, चीनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आई, डिमांड ज्यादा क्रिएट हो गई, अब इमीडिएट डिमांड को फुलफिल करना है, देन द ओनली वे आउट इज इंपोर्ट। इसलिए इंपोर्ट इंडिया को बहुत सारी ऐसी चीजों का करना पड़ता है जो एक्चुअली करना नहीं चाहिए, आइडियल सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उस तरह की क्रॉप काफी है। लेकिन चूंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड है, अनऑर्गेनाइज है, अनप्रेडिक्टेड है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे सरकार जैसे अभी किस चीज का रिपोर्ट किया था सरकार ने, प्याज का। अब प्याज हमारे इतना होता है लेकिन क्रॉप बर्बाद हो गई, मार्केट में दाम बढ़ गए। अब अगर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की एक बैलेंसिंग के हिसाब से देखें तो जितनी मार्केट में सप्लाई है प्याज की उसके हिसाब से उसका दाम होना चाहिए 100 रुपए पर केजी, बट 100 रुपए पर केजी होगा तो सरकारी खर्चे पे पड़ जाएगी। नाउ द चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट इज टू रिड्यूस दैट फ्रॉम 100 रुपीस टू 40 रुपीस। दिस मींस सप्लाई हैज टू बी इंक्रीज्ड। So if there is no availability in the country, then that supply has to be ensured from the import. That is how this agriculture import happens. Right? Okay. Any other question? Actually, question ये कि कुछ सामान जो सस्ते और महंगे की लिस्ट हमारे पास आई थी, उसमें से एक मोबाइल फोन है, बट देन गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि डिजिटल इंडिया होए। अगर हम लोअर लेवल पे देखें तो हम कंप्यूटर सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, रादर देन हम 10,000 11,000 का एंड्रॉइड फोन ले सकते हैं। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल इंडिया का भी उसमें भी इफेक्ट आएगा, बिकॉज लोग तो फिर फोन नहीं खरीद पाएगी जो लोअर लेवल पर है। तो ये भी तो कंट्रोवर्शियल आयरनी हो गई बिल्कुल एकदम कि एक साइड ये बोल रहे हो और दूसरी साइड ना। No, it's not like that. In fact, whenever the budget is made or whenever the government decide how much taxation is to be done in what product, it is broadly divided into two parts. One are the essential item and another is the luxurious item. Or can you add something on this? So this is the broad categorization. Now the tax cannot be increased on the essential items. Essential items very easily can be understood, which are basically the things which we eat, whether it's milk, whether it's the wheat, whether it's rice. I mean, which are very essential for the existence of a human being. So the efforts are for even FMCG products. So there also not much taxation is done because साबुन तेल ये हम सारे लोग रोज इस्तेमाल करते हैं. But then the products where we, I mean the consumers can wait. Like अगर अभी हमारे पास फोन है और 2 साल पुराना फोन है, अगर नया फोन मार्केट में आ गया, हम इमीडिएट नहीं भी खरीदते हैं तो हमारे ऊपर कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा हम 2 की जगह 3 साल में फोन बदल सकते हैं. तो इसलिए ऐसी चीजों पे टैक्स सरकार ज्यादा लगाती है. और जैसे लिकर है या सिगरेट है या इस तरह की चीजों पे सरकार टैक्स ज्यादा लगाती है. तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही रीजनेबल चीज है. ऑब्वियसली फोन सस्ता होना डिपेंड करता है कि हाउ मच डिमांड इज देयर इन द मार्केट. So the kind of demand that we have in our country as far as mobile phone is concerned or computer is concerned, it will never come down, at least given the present conditions, even if there is a small rise in the price. अगर 12,000 का फोन अगर 12,200 का भी हो जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. This the government understands. So that is how they do not put much emphasis on reducing the prices of such kind of products. सर मेरा क्वेश्चन है हेल्थ सेक्टर पे 67,000 करोड़ इन्वेस्ट
मतलब कि एलोकेशन किया गया, तो किस 67? 67,000 करोड़ हाँ, किस क्या क्या है? हेल्थ सेक्टर में। हाँ, किस सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर। हेल्थ, ठीक है। तो सर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये 4% इंक्रीमेंट है, और लास्ट ईयर देखें तो वो 19% था। तो ये डेप्रिशिएट क्यों कर रही है सरकार? डेप्रिशिएट क्यों कर रही है बजट, मतलब कि 19% से 4% क्या है? नहीं, अच्छा, फॉलो दिस कैन नॉट बी डू लाइक दिस। ये ठीक है, ये दिस इज नॉट, आई मीन दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव मच वैलिडिटी इन द सेंस कि सपोज if the government feels that the budget of the health is very low last year, if the government made this kind of estimate, then the government decided क्या हुआ? Then the government decided to increase it by 90%, right? Now the government feels that kind of increase is no more. Every year there cannot be a 19% increase. बट सो फिर भी फेयर, मतलब कि No, the government has increment होना चाहिए। economy is all about balancing. So balancing has to be there. If the government, for instance, does a 90% increase this year also, this means reduction of lot of expenses in other sectors. So there could be many sectors which are equally important. So that balance has to be created by the government. बट सर हेल्थ तो एक सोशल, Even education is important. उसको भी तो अगर सरकार को एजुकेशन में भी देना, इवन फार्मर्स को इंसेंटिव देना, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी एक चीज देयर. और, जैसे कि हमारा जो वैसे बजट है, जो बजट को एनालाइज करते हैं, वो ये कहते हैं कि बजट में हमारी सरकार 2.5% से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, मतलब कम इन्वेस्ट करती है, जबकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बजट एलोकेट करते हैं रिसर्च में. ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ रिसर्च पे इतना कम ध्यान I mean, there are two reasons behind. One is obviously we have lots of resources. We have limited finances available. That is one reason. Two, obviously that kind of investment, but research demands a lot of money. So that money, obviously, a country like India does not have, and particularly government has limited resources, limited money at its disposal. This is one. Two, the problem is also at the level of orientation. The government does not put that kind of emphasis which should have been there. That's no doubt there. So these are the two reasons I believe behind this.